जैसे 80 से 95 वाला दौर है, वो कुछ ऐसा ही अभी चल रहा है कि नो वन नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, और किस साइड कौन खड़ा होगा जब तक फैसला हो ना जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक डिक्लाइन देखा महाराष्ट्र में? कांग्रेस ने जब जब डिक्लाइन देखा पूरे देश में, तो महाराष्ट्र उसमें से लगभग सरवाइव कर जाता था। लेकिन उनको जो बड़े चैलेंजर मिले, वो दो मिले, वो कांग्रेस को महाराष्ट्र में, वो बीजेपी और शिवसेना। Hello and welcome to the Indian Express. I'm Charulata Biswas and you're watching Explained, where we will deep dive into the political whirlwind that is the state of Maharashtra. Maharashtra has been a land of social reformers like Jyotiba Phule and nationalists like Bal Gangadhar Tilak, who rallied people against the Britishers, and modern day politicians like Sharad Pawar. Maharashtra's political history is really rich and it is also complex. As much as the elections are going to be interesting this November 20th, when people are going to go out and vote, and the battle is between the Mahavikas Aghadi and the Mahayuti, political history is also really interesting. So to unpack all of that, today I'm being joined by Shyamlal Yadav, who is a senior journalist from the Indian Express. Thank you so much, sir, for joining me in this conversation. Dhanyavad. I'm really looking forward to hearing from you and getting all the gyan about Maharashtra's history, the political history. So to all the viewers who are watching us right now, stay tuned because there's a lot that is going to be coming in this video. So Shyamlal sir, let me first begin with my question that the state of Maharashtra was formed in the 1960, May 1st, Yes. right? So tell me, before Maharashtra was formed, pre-independence. Yeah, in fact, after independence, the states were roughly reorganized, and there were 9 Part A states. There were governors and elected legislature. Then there were Part B states, which were mostly princely states. So there were Raj Pramukh, means from the princely states, and also elected legislature. Then there were Part C states, which were a mix of princely states and others. Those were being called that time as chief commissioners states. Like you have almost like union territories. You have now It was lieutenant called governors. chief commissioners. Yes, like you have now lieutenant governors like in Delhi and Pondicherry, etc. So that time they were called Part C states. There were chief commissioners, which you call now lieutenant governors. So these 3 type states were there, and Maharashtra was one of the largest Part A state, which was spread. In fact, before partition, it was from Sindh to many parts of Karnataka, present day is Karnataka. Wow. So it was a big. huge Yes. state. Almost all Gujarat, today's Gujarat, was part of Maharashtra. Bombay state. Bombay state. So Bombay the state. was called Bombay State. Of course, its capital was Bombay. So in 1952 also, means after independence, this was Part A state, and 52 elections were held in that system only. And of course, in all over country there was only Congress prime political party. So there were 317 seats in you know that in first polls, means 1952 and 57, there was a system of two member constituencies in number of seats. So in Maharashtra also there were number of 2 member seats. In fact, only one assembly segment was there in the entire country. One assembly segment was 3 member, and that was in Maharashtra. The seat was called Nasik Igatpuri, where were 3 members in same constituency. One was general,
means unreserved, and one SC and one ST. Okay. So it, of course, Congress got the majority in 1952. Morarji Desai He became the chief minister. So that was state of Bombay States, and 57 also there was Bombay State, and in 1960, with effect from 1st May, as you told, new state was formed. So first polls 1952, Congress got majority, thumbing majority. No main opposition was at that time, you can understand. And in 57 polls, then again was delimitation based on 51 census. So seats were increased to 396. Okay. There was same 2-member constituencies, number of not 3-member in 57. So and out of 396, Congress again got majority with 234 seats, and but before that something tragic happened in Bombay State. In fact, should I speak in Hindi? Yes. तो बॉम्बे स्टेट में इनफैक्ट 1920s से ही लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने की डिमांड हो रही थी. मराठी स्पीकिंग स्टेट, संयुक्त महाराष्ट्र स्टेट, ऐसा कुछ करके मूवमेंट चल रहा था. 1920s से ही हल्का फुल्का चल रहा था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट अगेन गॉट मोमेंटम. एंड जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए फर्स्ट लोकसभा के दौरान ही, तो जस्टिस फजल अली उसके हेड थे. मीन्स ही वाज हेडिंग द कमीशन में बहुत डेलिब्रेशंस हुई हैं, और बाद में गोविंद वल्लभ पंत आ गए थे होम मिनिस्टर, वो पूरा लुक आफ्टर कर रहे थे, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हुए थे. तो उस कमीशन के सामने भी बहुत डिमांड हुई कि महाराष्ट्र और गुजरात, मीन्स अब तो 2 स्टेट बाद में बने, उस समय ही डिमांड थी कि इसको स्प्लिट किया जाए महाराष्ट्र स्टेट, लेकिन कमीशन ने नहीं माना. कमीशन ने ये बात नहीं, उनका लॉजिक था वो. इनफैक्ट वो रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की मैं पढ़ रहा था अभी एक पीस लिखने के पहले. वेरी इंटरेस्टिंग. They have appreciated the valor and patriotism of Marathi speaking people. There were many complications in fact. ऐसा है कि like बॉम्बे जो है ना, मुंबई जो अब हो चुका है, शहर की बात कर रहे हैं. शहर में पहले क्या होता था, पहले जो है वो मेजॉरिटी गुजराती स्पीकिंग था. Right. And it was surrounded by Marathi speaking districts. Okay. तो इसको लेकर के बहुत कॉम्प्लिकेशन था. और 1956 में एक बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, ये अनाउंस कर दिया था कि बॉम्बे विल बी यूनियन टेरिटरी. बट वो बाद में वो फैसला नहीं अमल में लाया जा सका. तो जब ये 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो गया और उसकी रिपोर्ट आ गई, उस पर सरकार ने फैसला कर लिया, तब मराठी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट बनाने के लिए डिमांड फिर से बहुत तेज हो गई. उसमें खास करके जो लेफ्ट वाली यूनियंस हैं, इनका बड़ा रोल था. तो 56 में एक बड़ी इंसिडेंट हुई. मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर थे, और जनवरी 2nd वीक की बात है, एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, शायद 14 जनवरी की है. मुंबई में, आज का मुंबई जो है यानी बॉम्बे में, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसमें पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मरे थे. अभी मुंबई में एक हुतात्मा चौक है, दैट इज़ द प्लेस वेयर दिस पुलिस फायरिंग हैपेंड. तो उसके बाद आपको पता है कि जब पुलिस फायरिंग हो जाती है, बहुत लोग मर जाते हैं, तो स्टेट जो है, जो हमारे आपके सामने जो हुआ है, उत्तराखंड आपने देखा होगा, जब रामपुर तिराहा कांड हुआ था, उसके बाद स्टेट बनना एकदम लगा कि अब फाइनल हो गया. तो इसके बाद जो है वो बात चल पड़ी कि अब जो है इनकी बात माननी पड़ेगी. और उस घटना के कुछ ही महीने बाद, अक्टूबर 56 में, मोरारजी देसाई को नेहरू जी ने यहाँ दिल्ली बुला लिया, फिनांस मिनिस्टर बना करके, और वहाँ पर
YV चौहान मराठी पे, वो मोरारजी भाई गुजराती थे, और वो चौहान साहब को, YV चौहान को, वन ऑफ द अदर टॉलेस्ट लीडर्स, उनको जो है वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और वो फिर धीरे धीरे बाद में एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन फिर से बना, जिसपे 1960 में वो नया राज्य बना महाराष्ट्र। तो ये है महाराष्ट्र बनने की कहानी। उसमें जब स्टेट बन गया तो लगभग 2/3 असेंबली सेगमेंट्स वो गए महाराष्ट्र में, नए स्टेट में, और लगभग 1/3 उधर रह गए गुजरात में। सो दैट इज हाउ महाराष्ट्र केम इनटू एक्सिस्टेंस। तो महाराष्ट्र स्टेट, अब उसके बाद तो देश में जो सिचुएशन बनती है, आपने देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई। बाद में पंजाब बना उसी बेसिस पर है, उसमें से हरियाणा हिंदी स्पीकिंग एरियाज अलग हुए। तो ये बात फिर बढ़ती गई, साउथ में भी उस तरह के ये तेज हुए, आपने सब देखा अपने सामने है। तो ये है महाराष्ट्र, आज का जो महाराष्ट्र है जो हम अभी उसके बनने की कहानी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी थी उस टाइम पे 1960s से 1980s तक, एंड फॉर डेकेड्स देयर वर लाइक लीडर्स लाइक यशवंतराव चव्हाण who was the first, वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चव्हाण, शंकर राव, ये सब बड़े स्टॉलवर्ड्स का मैं नाम ले रही हूँ अभी। तो ये सब जिनका सेंटर की पॉलिटिक्स में भी बड़ी धमक रहती थी, बड़े प्रभावशाली लोग। तो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर और सोशल वेलफेयर की तरफ अपना काफ़ी ध्यान रखा है। तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक डिक्लाइन देखा महाराष्ट्र में? इतने सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो शुगर और डेयरी सेक्टर्स में महाराष्ट्र ने देखे, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस जो है, एक चीज आप महाराष्ट्र के संदर्भ में आपको समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने जब जब डिक्लाइन देखा पूरे देश में, तो महाराष्ट्र उसमें से लगभग सरवाइव कर जाता था। महाराष्ट्र में कांग्रेस उसमें सरवाइव कर जाती थी। लाइक नॉर्थ इंडिया में 3 बड़े झटके कांग्रेस को लगे उस मीन्स आज़ादी के बाद। पहला 67 में, दूसरा 77 में और तीसरा 89 में। तीनों में कांग्रेस ने जो है महाराष्ट्र में बहुत अच्छा किया। 67 में जब नॉर्थ के कई स्टेट्स में और साउथ में तमिलनाडु तक में कांग्रेस सरकार चली गई, वहाँ 67 में महाराष्ट्र में कांग्रेस लौटी थी बहुमत के साथ। अच्छा। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद देखिए कांग्रेस का स्प्लिट होता है 69 में, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ में। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन 72 में होता है, और 72 में कांग्रेस ओ जो थी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस जिसको कहते थे, उसको एक भी सीट वहाँ नहीं मिली। तो कांग्रेस कैसे वहाँ मजबूत रही है, ये इसका एक सबूत है। उसके बाद देखिए 77 में, 77 जो का जो इलेक्शन था महाराष्ट्र में लोकसभा में, उसमें बहुत अच्छा किया था कांग्रेस ने। और उसके बाद 78 में असेंबली पोल हुए, उसमें भी कांग्रेस की सरकार लौट आई थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मोरारजी भाई की सरकार जब दिल्ली में बनी जनता पार्टी की, तो उन्होंने कई सारी गैर कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, आपको ध्यान होगा। लेकिन महाराष्ट्र को नहीं टच किया, क्योंकि महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार कुछ महीने के अंदर ही गिर गई, क्योंकि वो शरद पवार ने उस समय नई पार्टी बना ली। लेकिन चुनाव में नहीं हारी कांग्रेस। इसी तरह से 89 आता है। 89 में जब वीपी सिंह के इसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगता है, तो 90 में वहाँ असेंबली के चुनाव हुए हैं, उसमें आप देखेंगे फिर कांग्रेस लौट आई। कांग्रेस थी पावर में, उसको नहीं हरा पाया जनता दल। तो कांग्रेस को आप यूं मत कहिए, कांग्रेस को जो झटके लगे हैं, वो जिसने झटका दिया है वो फिर कांग्रेस के साथ ही काम करता रहा है, अनलाइक इन मेनी अदर स्टेट्स। जैसे देखिए शरद पवार साहब जो है, इज
among the politicians जिसका Yes. हमारी आपकी जनरेशन ने बड़े लंबे समय तक उनका प्रभाव देखा है. बिल्कुल. मतलब he is the youngest chief minister of Maharashtra, पता है? Yes. At the age of 38 Yes. he was chief minister in 1978. कांग्रेस छोड़ करके वो कांग्रेस सोशलिस्ट एक ग्रुप बनाया और फिर सरकार बनाई. उसके बाद वो पहले कांग्रेस में थे. Of course, कांग्रेस और में थे. उन्होंने फिर हाँ. स्प्लिट किया Yes, 1999 yes. में. Correct? पहले तो 78 में, पहले Oh, 78 okay. में, Okay. फिर कांग्रेस में आए. Okay. फिर जो है कांग्रेस छोड़ी और फिर कांग्रेस में आए. लेकिन वो अब जैसे लास्ट टाइम जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, हमारे आपके सामने हुआ है 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई यहाँ पर, तो बड़े एफर्ट हो रहे थे कि सोनिया गांधी जी की पूरी कोशिश थी कि वो प्रधानमंत्री बन जाए. तो उसमें फॉरेन अच्छा, ओरिजिन के अच्छा. इश्यू पर जिन लोगों ने सबसे प्रबल विरोध किया था उसमें मुलायम सिंह यादव और शरद पवार थे. शरद पवार ने उसी बिना पर अलग पार्टी बना ली थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो अभी है उनकी, और उसमें बड़े पीए संगमा और ये तारिक अनवर वगैरह जाकर के बड़ी पार्टी बनाए. लेकिन उसके बाद वहाँ असेंबली पोल हुआ और असेंबली के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर ही उन्होंने सरकार बनाई और वो सरकार उनकी और कांग्रेस की 15 साल चली है. मीन्स यहाँ 2014 में जाके बीजेपी आई. तो ये है महाराष्ट्र की कहानी. महाराष्ट्र में कांग्रेस देखिए बाकी जगह और रीजनल पार्टीज पैदा हुई हैं जैसे यूपी बिहार वगैरह से एकदम डिफरेंट है वहाँ सिचुएशन. वहाँ आप देखेंगे जो कांग्रेस को चैलेंजर मिले हैं दो, वो पवार साहब तो कांग्रेस छोड़ के फिर कांग्रेस से ही मिलते थे और उससे कांग्रेस को ही मजबूती मिलती थी. हाँ. कभी इनका सीएम उनका अभी भी तो है वो. हाँ, अभी भी कांग्रेस के साथ, अभी भी कांग्रेस के हाँ. साथ ही हैं. लेकिन उनको जो बड़े चैलेंजर मिले वो दो मिले, वो कांग्रेस को महाराष्ट्र में वो बीजेपी और शिवसेना में. तो ये बड़े चैलेंजेस. जी, जी, जी. शरद पवार के बारे में थोड़ा और बात करते हैं. वो जैसे आपने बोला कि वो काफ़ी एक टॉल फिगर रहे हैं पॉलिटिक्स में. अभी भी हैं. अभी भी है सॉरी अभी भी जी, है. जी. आज बिल्कुल उनकी रैली भी चल रही थी महाराष्ट्र में. तो मुझे ये पूछना था कि उनका क्या इम्पैक्ट रहा है और क्या रहेगा अभी के टाइम में. हाउ डज ही इम्पैक्ट द महाराष्ट्र पॉलिटिक्स. इम्पैक्ट जो हमारी आपकी जनरेशन जो देख रही है, पिछला चुनाव आपने देखा था कि कितना वो खुद बीमार हैं, उनको आप देखिए तो, लेकिन कितना टायरलेसली वो काम करते हैं, कैंपेन करते हैं. पिछले वाले चुनाव में हम लोगों ने देखा, इसमें भी देख रहे हैं, वो इज क्वाइट एक्टिव. तो और ये अभी नहीं, अब बताया आपको कि ही इज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इन 1978. मतलब 78 में भी सीएम थे, तो उस समय उनका प्रभाव देखिए स्टेट में रहा होगा तभी बने ना. और आज भी उनका जो प्रभाव है रोज हम लोग देखते हैं. मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस. जो एग्रीकल्चर वहाँ जो कम्युनिटीज हैं, शुगर लॉबी है, कोऑपरेटिव्स हैं. देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हमारी आपकी पीढ़ी ने जो महाराष्ट्र को देखा है ना, बड़े लंबे समय तक ऐसा हम सब लोग मानते थे कि दो कैरेक्टर्स हैं जिनके बिना महाराष्ट्र की चर्चा अधूरी है. हमारी जनरेशन ने देखा. एक बाल ठाकरे, दूसरा शरद पवार. I was going to guess. दूसरा शरद पवार. Yes. तो अभी हैं और ईश्वर करे वो यूं ही काम करते रहे. लेकिन yes, absolutely. जी I get उनका that. देखिए इस दौर में जो कई राज्यों में बड़े बड़े रीजनल छत्रप हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आप कश्मीर से शुरू करिए तो फारूक अब्दुल्ला, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, यूपी में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू यादव, उधर बंगाल में ममता बनर्जी, उधर पटनायक, साउथ में करुणानिधि एंड जयललिता. तो इसमें पवार साहब जो है ये ऐसे जो स्टेट्स के अलग अलग धुरंधर हुए हैं ना, उनमें से पवार साहब अभी भी एक्टिव हैं. Absolutely, and we'll see what happens next. But from Sharad Pawar, the grandmaster, chess grandmaster of Maharashtra politics,
coming to Bal Thackeray, जी who founded the Shiv Sena yes yes with the mission to protect the interest of Marathi speaking people. yes उनके बारे में कुछ हमें बताइए. इट वाज फाउंडेड इन 1966. ठीक है. और बाल ठाकरे साहब जो है वो पहले कार्टूनिस्ट थे, आपको मालूम है. Yes, और जैसे पवार साहब का है वैसे हमारी जनरेशन जो देख रही है कि ठाकरे साहब का जो प्रभाव है वो लगातार बना हुआ है. देखिए जब उनका ये शिवसेना बनाई थी तो जैसा आपने कहा वो मराठी स्पीकिंग लोगों का इंटरेस्ट, फिर वो ट्रेड यूनियंस के बीच में काफ़ी उनके लोग रहते थे. और शुरू में माना जाता था कि वो जो कांग्रेस के उस समय के स्टालवर्ट थे वसंत दादा पाटिल, ये उनके इंटरेस्ट सर्व करते थे. लेकिन जब जनता पार्टी बनी 77 में और उसके बाद बीजेपी बनी, जब जनता पार्टी फिर से डिसमेंटल हुई और 1980 में जब बीजेपी बनी तो जो आरएसएस के उस समय के चीफ थे बाला साहब देवरस, इनके बाल ठाकरे के अच्छे रिश्ते थे ऐसा माना जाता है. तो फिर इन्होंने थोड़ा जो है बीजेपी की तरफ किया, फिर बीजेपी से अलायंस करना इन्होंने चालू किया. तो इनके पहले एमएलए तो शिवसेना के वैसे 72 में बन गए थे, लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बनी वो उसके बाद ही बनती है 1985 के बाद से. और फिर 95 आते आते फिर बाल ठाकरे और बीजेपी में प्रमोद महाजन होते थे, दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई. तो ये सब लोगों ने फिर ऐसा उस समय सिचुएशन बनी कि 1995 में फिर इनके अलायंस को बहुमत मिला और 5 साल इनकी सरकार भी चली. तो अभी जैसे आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी के साथ वो एक ट्रांजिशन जो हुआ था, अलायंस जो हुआ था, तो ये जो एक उनका स्टैंड था कि मराठी पीपल के हित के लिए वो लड़ रहे थे, वहाँ से वो उन्होंने जंप किया हिंदुत्व में, राइट? तो क्या यही वो मोमेंट था जब महाराष्ट्र ने वो एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फेस किया, या हमने एक हिंदुत्व वेव देखा? ऐसा है ना, वो जो हमने समझा और देखा है, देखिए 1980 से लेके और 95 तक महाराष्ट्र जो है वो बहुत अलग अलग वजहों से चर्चा में रहा है. उस समय आप देखेंगे, देखिए महाराष्ट्र अभी भी रिचेस्ट स्टेट है देश का. इट्स थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस नंबर ऑफ असेंबली सीट्स. बाय द वे, नंबर ऑफ असेंबली सीट्स नंबर 1 इज यूपी में 403 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 294 है और यहाँ पर 288 है. दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ असेंबली सेगमेंट्स एंड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर यूपी. करीब 10% पॉपुलेशन महाराष्ट्र में रहती है देश की. सो ये तो महाराष्ट्र की जो अपनी ताकत है वो है ही. तो आप जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल क्या था? मैं थोड़ा सवाल ये था कि ये जो हिंदुत्व अच्छा, वेव हम देख रहे हैं क्या है, 80 से 95 तक महाराष्ट्र में आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, हाजी मस्तान, देन दाऊद इब्राहिम से लेकर के अरुण गवली तक, मतलब अलग अलग टाइप के माफिया गैंग. फिर कम्युनल राइट्स हुए, जो बम ब्लास्ट, ये 93 वाला जो इंसिडेंट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, जब इधर नॉर्थ इंडिया में ये सब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हो रहा था, तो कुछ शिवसेना उस समय उसका अप्रोच थोड़ा मराठी से हिंदुत्व की तरफ जो है वो आने लगा था. तो और फिर बीजेपी के वो पहले एलआई है ना, आपको पता ही है, उसके बाद अकाली दल बाद में आया था. तो इसलिए फिर वो उन्होंने अपनी धारा बदल दी और उनका एक ग्रुप आपने बाद में देखा ही कि उनके बाल ठाकरे के जो नेफ्यू हैं राज ठाकरे, उन्होंने तो अपना वो मराठी मानुस वाला फिर से चालू किया था ना, फिर से चालू किया था, लेकिन वो चला नहीं. तो ये कहिए कि 90 के बाद से ना वो जो हिंदुत्व वाली लाइन इन्होंने पकड़ी और उनकी रेलेवेंस अब इस मायने में तो कही जाएगी ना. अब 95 में मेजॉरिटी मिली उनको, बीजेपी के साथ बड़ा अच्छा अच्छी निभी उनकी.
और बाल ठाकरे का भी प्रभाव जैसे पवार साहब का है वो लंबा है महाराष्ट्र। अभी भी उनकी रेलिवेंस उनकी पार्टी की, उनके परिवार की बनी हुई है। और आपको याद होगा कि जब उनका निधन हुआ था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी साहब भी गए थे तो उनका स्थान जो है वो बहुत बड़ा बन गया था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। राइट। अभी शरद पवार के बारे में बात किया हमने, बाल ठाकरे के बारे में बात किया, हिंदुत्व का वेव किस तरह से आया और किस तरह से अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। एक तरह से बीजेपी ने तो उसको एक प्लैंक बना ही दिया है इस कैंपेन में। महाराष्ट्र वो तो नेशन वाइड है हाँ। तो राज ठाकरे के बारे में आपने मेंशन किया, जिन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वो लेकर आए और काफ़ी रीजनलिज्म भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की। उन्होंने काफ़ी टाइम हमने भी देखा था कि एक तरह से बिहारियों के अगेंस्ट उनका एक जो रवैया था, प्रोटेस्ट वो कर रहे थे कि मराठीज़ को जॉब्स मिलने चाहिए। उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह से वो ठाकरे लीनेज को वो आगे लेकर आए हैं। जब कोई भी फैमिली में कोई भी स्टालवर्ट होता है तो उसकी लेगेसी के लिए फिर झगड़ा होता ही होता है, सबका आप जानते हैं। तो वो उनके परिवार में भी हुआ। तो पहले वो एक्टिव थे, बाद में जब बेटे ने कैप्चर कर ली लेगेसी तो फिर होता ही है ना। आपने यूपी में नहीं देख रहे मुलायम सिंह के परिवार में शिवपाल यादव ने कोशिश की, लेकिन बाद में लेगेसी वो अखिलेश यादव के साथ कंटिन्यू कर रही है, वो भी साथ में। बिहार में भी तो चिराग पासवान सब जगह होता है। तो और ये ह्यूमन नेचर है उसमें, जो स्टालवर्ट होता है उसके लिए। अब पवार साहब के परिवार में खुद होने लगा है अभी से, आप देखेंगे अजीत पवार फैक्शन। तो इसलिए वो लेकिन जो मेन शिवसेना जिसको कहते हैं उसका पूरा जो क्लास है वो तो उद्धव ठाकरे के साथ है। हालांकि वो आपने देखा कि वो इस पिछले 10 साल में तो जबरदस्त फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना महाराष्ट्र में। लोग कंफ्यूज हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में तो बहुत ज्यादा हुआ उसमें। आप देखिए कि पवार साहब ने कांग्रेस छोड़ी थी, कांग्रेस तोड़ के एनसीपी बनाई थी। अब एनसीपी में उनके परिवार के लोग भी उसको टूट गया। शिवसेना में जो है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे तो पहले से ही अलग थे। उद्धव ठाकरे ने जो है वो कंटिन्यू की और उनकी पार्टी को तोड़ करके बीजेपी ने तो अभी तो देखिए अभी नंबर ऑफ ग्रुप्स आर देयर। तो इसलिए ये जैसे 80 से 95 वाला दौर है वो कुछ ऐसा ही अभी चल रहा है कि नो वन नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, और किस साइड कौन खड़ा होगा जब तक फैसला हो ना जाए आप कुछ नहीं जानते। तो अब महाराष्ट्र इंटरेस्टिंग ये बन गया ना। आप देखिए पीछे देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे और अगली सरकार बनी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा यूपी में पहले हुआ था 79 में। राम नरेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया, उनको रिजाइन करना पड़ा तो अगली सरकार बनी जो बनारसी दास की, उसमें वो बनारसी दास चीफ मिनिस्टर, राम नरेश यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो ये होता है पॉलिटिक्स में, हर कोई रेलिवेंट बने रहने के लिए पोस्ट चाहिए होती है। तो अभी महाराष्ट्र बहुत ही बढ़िया केस स्टडी बन गया है कि इंडियन पॉलिटिक्स में जो क्या है इमरजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज एंड पार्टीज एंड ग्रुप्स वो होता है। वो That is the beauty of democracy, right? Yes, वो तो है ही है, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही है। और महाराष्ट्र बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है। इट्स लाइक अ सोप ओपेरा कि कुछ नए ट्विस्ट आ रहे हैं, कोई न्यू अलायंसेस हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल सोप ओपेरा जैसा दिख रहा है मुझे। किसी को नहीं पता है कि क्या होगा। और जो आज बोल रहा है कैंपेन में, वो चुनाव रिजल्ट आने के बाद क्या करेगा कुछ नहीं पता। हाँ, करेक्ट। अब बात करते हैं कास्ट की। देखिए एंड करते हैं इस मुद्दे से, क्योंकि अभी ये जो मनोज जारंग पाटिल हैं जो मराठा कोटा एजिटेशन को वो आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स हैज़ बीन शेप्ड बाय कास्ट पॉलिटिक्स, राइट? What do you have to say about? देखिए मराठा जो है ना वो बहुत ही वैसे सोशली बहुत डोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है महाराष्ट्र में। और अभी तक ज़्यादातर जो चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं वो मराठा ही हुए हैं। तो अकेले पिता पुत्र चीफ मिनिस्टर हुए हैं शंकर राव चौहान और अशोक चौहान। अशोक चौहान अब बीजेपी में आ गए,
कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर थे, भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था उनको, तो वो अब बीजेपी में है। तो ये मराठा है, शरद पवार साहब मराठा, कई सारे इनके पहले देखिए एक चाचा भतीजे वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, वसंतराव नाइक और सुधाकर राव नाइक, ये लोग बंजारा थे हैं। ठाकरे ऑफ कोर्स वो कायस्थ मानते हैं कम्युनिटी। और एकमात्र जो शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर अब तक हुए महाराष्ट्र के, जिस स्टेट में डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, उस स्टेट में अब तक एकमात्र शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर हुए और सुशील कुमार शिंदे। और एकमात्र मुस्लिम चीफ मिनिस्टर वो AR अंतुले बने थे अर्ली 80s में, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में उनको हटना पड़ा था। तो ये कास्ट जो है महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में मैटर करती है। जो कोई कहता है कि जातिवाद खत्म हो गया है, उसको सच दिखाई नहीं पड़ता है या वो सच देखना नहीं चाहता। तो महाराष्ट्र में मराठा ये जो अभी चल रहा है, वहाँ भी अलग अलग सेगमेंट्स का वो हमेशा रहा है। अब ब्राह्मिन्स का और शेड्यूल कास्ट का और मराठा लोग मोस्टली ये क्या बोलते हैं, फार्मिंग कम्युनिटी है, जैसे इधर यूपी वगैरह में जाट यादव ये सब है ना। तो अब उनका स्ट्रगल उनको चल रहा है OBC में इंक्लूड करने के लिए, जैसे इधर जाटों का चल रहा था। जाट लोग अभी सेंट्रल लिस्ट में नहीं आए, लेकिन 5 स्टेट्स में स्टेट लिस्ट में है रिजर्वेशन में। तो लेकिन महाराष्ट्र का जो आज़ादी के बाद जो अधिकतम जो टेन्योर है, दैट वाज रूल्ड बाय मराठा ओनली। ओके एक्सेप्ट दैट सुशील कुमार शिंदे कुछ हैं, जैसे वो नाइक चाचा भतीजे हुए, ये ठाकरे हुए और फडणवीस हुए, ऑफ कोर्स ही इज अ ब्राह्मण। तो लेकिन ज़्यादातर टेन्योर जो है वो मराठा लोगों ने ही राज किया है। So today the Maharashtra's political scene is highly fragmented compared to what it was in 1960s when Congress, it was a Congress's bastion, right? So on that note, we will say goodbye to Shyamlal sir because he's जैसे हिंदी फिल्मों की कहानियाँ होती हैं ना, वो वैसी ही बन गई है। Don't forget to like and subscribe and share this video with your friends and anybody who wants to know about what's happening in Maharashtra. That's all for today. Thank you so much for watching.